सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सार्थक ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा चाणक सिविल विद आकाश चाणक्य IAS अकेडमी ਤੇ। So as you all know, we have started this lecture series on ethics and it is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS mains, which is going to be held on 1st of April as per the official notification. And a lot of lectures have already been covered under this particular lecture series, and I hope you have already watched those lectures. If you haven't, after watching this lecture kindly watch those lectures also. वो सारे lecture भी देख के आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी help होगी, right? So with all this information, let's start our today's lecture. The topic of today's lecture will be information sharing, right? In governance aspect, we will see, and transparency also. We will cover this important topic. It comes under probity in governance, which is very much relevant, right? We have already covered the first topic of this particular section of ethics, right? Okay, so let's start. Start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ as usual ਇੱਕ ਬਹੁਤ important information, which is mains box, right? What is this? चाणक्य IAS अकेडमी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ मेन्स बॉक्स, ठीक है? मेन्स दा ब्रेन बॉक्स ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ see here you will be getting booklets plus mains test series. You will be getting two things under this: printed booklets covering the whole syllabus of mains and the mains test series. ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ. You can definitely go for it. ਜੇ ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਟ ₹5,000 ਓਨਲੀ, ਵੈਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਸਤਾ ਹੈ ਬਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਟਿਲ, ਠੀਕ? ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਵੈਰੀ ਥੋਰਲੀ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. इट्स नॉट लाइक कि अफोर्डेबल ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰग ਲਾਈਕ दैट, ठीक है? बहुत थोरो प्रिपरेशन नाल टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की गई है, एंड टेस्ट सीरीज दी इंपॉर्टेंस आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू, राइट? ओके, सो विद दिस नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सी आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, मैं तुहानू एक क्वेश्चन नाल स्टार्ट करना है. आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू विल बी राइटिंग आंसर्स, ठीक है? ऑल राइट, बट जस्ट बिफोर दैट एक बार रिमाइंडर किहड़े टॉपिक आपां इहदे च करांगे, ठीक? यस, नो कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस नहीं आएगा, ठीक है? वी विल बी डीलिंग विद प्रॉबिटी ओनली. इट इज नॉट देयर. सी फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉबिटी, यस. इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, नॉट गवर्नमेंट, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट दो मर्जी कह लो, बाय द वे दोनों ही ठीक है वैसे तो, राइट? ये आज इनफैक्ट आज का टॉपिक भी ये है. देन विल बी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, देन कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन. वन बाय वन सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट, राइट? सो दीज विल बी द टॉपिक दैट वी विल बी dealing with, right? Okay, now just wait. Yes, just a second, I'll be telling you the question. Yes, all right. Yes, so the question that you will be writing is this. ठीक, ह्यूमन वैल्यूज टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, ऑलरेडी वो टॉपिक हो गया है, ठीक है? सो इट इज ऑफन, जस्ट राइट दिस डाउन, इट इज ऑफन सेड दैट, इट इज यूपीएससी का बाय द वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है? इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स do not go together, do not go together, ठीक है? What is your opinion in this regard? What is your opinion in this regard? ठीक है? Then justify your answer. Justify your answer, right, with illustration, with illustration. यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? 10 मार्कर था, राइट? 150 वर्ड्स में था ये, एंड 10 मार्क्स. So what you will be doing, what I suggest you, write this question,
ठीक है, और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिए, आई विल बी चेकिंग इट फॉर यू, राइट। आप टेलीग्राम चैनल पे सेंड कीजिए एंड आई विल बी checking it for you, right? Okay, so this is my telegram channel, you can scan this QR code, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके then you can post your answer there, I'll check it and revert back to you, ठीक है। Okay, so with this now let's start our lecture which is information sharing. Okay. Just a second, right? Yes. So information sharing and transparency in governance. ठीक, first of all, what does information sharing means? ठीक है, what does information sharing means? So just give me a second. Yes. Okay. So what is the meaning of information sharing? बहुत सिंपल है by the way, but पहली इंपॉर्टेंट चीज दैट यू शुड बी वेरी क्लियर विद इट इज कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी किसकी बात कर रहे हैं हम? गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कभी भी किसी पर्सनल, किसी बंदे, प्राइवेट पर्सन की बात नहीं हो रही, हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द गवर्नमेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग उसी टर्म्स में होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में ये इसकी डेफिनेशन भी, राइट। इसका मीनिंग क्या है? सिंपली लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्या वो रिवील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आर दे रिवीलिंग इन एवरी इन्फॉर्मेशन और नॉट? ठीक है, रिवीलिंग इन द सेंस टू कीप इन पब्लिक डोमेन। कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है या कोई पॉलिसी है या कुछ भी नया लॉ लेके आ रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, आर दे कीपिंग इट ओपन इन द पब्लिक डोमेन? पब्लिक के लिए ओपन है कि वो जब चाहे उसको एक्सेस कर सके, देख सकें बेसिकली। आर दे शेयरिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो इसी टर्म्स में बात होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज एज सिंपल एज दैट, राइट। किसको? इन्फॉर्मेशन को रिवील करना, बाय द वे, पब्लिक डोमेन में ओपनली सबके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, राइट। देन इट इज ट्रांसपेरेंसी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, राइट। नाउ व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? कि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, okay. Okay, students. So yes, we were talking about information sharing and transparency, right? See, first of all, when we talk about these two things, both of these are interlinked, right? When we talk about these two things, information and transparency, दोनों चीजें interchangeably यूज होती हैं, ज्यादा डिफरेंस as such नहीं है। इनफैक्ट दे आर लिंक टू each other, they are complement each other, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो, तभी इसको एक दूसरे की जगह इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जब हम बात करते हैं, इट इज सिंपली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इट सिंपली मेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है नॉट टू कीप एनी सीक्रेट्स, बेसिकली सिंपल मीनिंग होता है नॉट टू कीप एनी सीक्रेट्स, ठीक है, या फिर let be scrutinized, let others scrutinize yourself, ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या मतलब है? स्क्रूटिनी, कि एक्शन को दिखा रहा है, राइट। कि अगर हम कहें कि गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, इसका मतलब है दे आर ओपनली अलाउइंग द सिटीजन, द कॉमन पीपल टू स्क्रूटिनाइज देम, टू स्क्रूटिनाइज ईच एंड एवरी देयर एक्शंस, जो भी वो एक्शन कर रहे हैं, जो भी उनकी पब्लिक पॉलिसी, जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको स्क्रूटिनाइज कितना ज्यादा कर सकते हैं, कितना ज्यादा ओपन रख रहे हो, हिडन तो नहीं रख रहे, सीक्रेट्स तो नहीं रख रहे,
और वो होगा कैसे? इंफॉर्मेशन शेयरिंग से, राइट? सो ट्रांसपेरेंसी को आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि इट इज कितना एक्यूरेट, राइट, इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट? ओनली देन यू विल से ना कि आप सीक्रेट नहीं रख रहे, हिडन नहीं रख रहे चीजों को, करेक्टली पोर्ट्रे कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो अदर सिटीजन्स को। तो जितना ज्यादा आप कर पा रहे हो उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कहलाएगी, उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीजें हैं। यस और नो, राइट? आई होप समझ आया होगा। सो इफ आई से द करेक्ट, इफ यू वांट टू राइट द करेक्ट डेफिनेशन आल्सो, देन यू कैन राइट, राइट, कि अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करें तो इट मीन्स disclosure of information related to government policies, related to government policies, right? List of beneficiaries, list of कितने भी जो इतने भी स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली, list of beneficiaries, right? And status of ongoing projects, status of ongoing projects, etc. ठीक है, ठीक है, एटसेट्रा। और जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की क्या बात करेंगे? इसकी बात करेंगे द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट विच आर नॉट केप्ट हिडन फ्रॉम द पब्लिक स्क्रूटिनी, विच आर नॉट केप्ट hidden from the public scrutiny, from public scrutiny, ठीक है, and can't be opaque, right? And both these things, transparency as well as information sharing, can be used interchangeably, right? So let's come to the slides, देखते हैं, ठीक है। so यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कोट्स हैं which you can definitely use, like ट्रुथ, महात्मा गांधी जी ने बोला ट्रुथ नेवर डैमेजेस अ कॉज दैट इज जस्ट, ठीक है। अगर आपके एक्शंस करेक्ट है, एथिकल है, जस्टिफाइबल है, राइट, आपने सही काम किया है, तो फिर आपको सच बोलने से डर नहीं लगेगा, आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। यस और नो? सो ट्रुथ नेवर डैमेजेस अ कॉज दैट इज जस्ट, बाय महात्मा गांधी। यस, देन अ पीपल हु मीन टू बी देयर ओन गवर्नर्स must arm themselves with power that knowledge gives, right? A people who mean to be their own governors must arm themselves with power that knowledge gives. Basically यहाँ पर knowledge, information sharing की बात कर रहे हैं। Yes or no? Definitely इसका भी use कर सकते हो आप, by James Madison. Then popular government without popular information or the means of acquiring it is but a prologue to farce or a tragedy or perhaps both. Again यहाँ पर James Madison, ठीक है। I don't think I need to explain these two. These are just quotations, again focusing on the importance of information sharing and transparency. Transparency means shedding light on shady deals, weak enforcement of rules and other illicit practices that undermine good governments, ethical businesses and society at large by Transparency International. सी एक इंस्टीट्यूशन ही हम सबको पता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, इतनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि एक रिकग्नाइजेबल ग्लोबल आपकी एक फाउंडेशन है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। उनका काम भी यही करना होता है, वो गवर्नमेंट्स को जज कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कितनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखी हुई हैं, फॉल्स डाटा तो नहीं शेयर हो रहा, लाइक जो आपके एक्ट्स हैं वो जस्टिफाइबल हैं कि नहीं है। वो तभी होंगे जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखोगे आप चीज़ों को, तो जितनी सी ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ का पैरामीटर है कि कितने आपकी जस्ट, एक फेथ का पैरामीटर होता है। अभी हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस देखेंगे, वहां पर वो क्लियर होगा आपको कि क्यों करना होता है। अगला क्वेश्चन यही है हमारे दिमाग में, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड कम इज कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। यस, बट जस्ट बिफोर दैट लेट अस सी द डेफिनेशन हियर, ठीक। सो ट्रांसपेरेंसी एज अ मैकेनिज्म इन गवर्नेंस is the practice that enables the people to obtain accurate information about government activities. Yes or no? Right? Transparent information can be details on anything from accounting figures to how decisions are taken in government to information about rules or laws that govern the system, etc. Right? तो यहाँ पे सबसे important keyword क्या है? Accurate information. Obtaining accurate information. जब ट्रांसपेरेंसी की बात है, इट इज अबाउट ऑब्टेनिंग द एक्यूरेट
इंफॉर्मेशन, यस सर नो, ठीक है। और आपको किसी भी टाइप की डिटेल अगर आपको प्रोवाइड करी जा रही है, आप गवर्नमेंट से कोई डिटेल मांग रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, एंड दे आर एबल टू प्रोवाइड यू, आपके लिए प्रोवाइड करी जा रही है, उसको हिडन नहीं रखा जा रहा, शेडी नहीं है बेसिकली, वो डील ओपन है सबके लिए, तो वो उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक। सी ट्रांसपेरेंसी इज अबाउट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड सिटीजन्स, सबके साथ शेयर करने में के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है वो, यस। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट, सी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये कीवर्ड होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का आपके दिमाग में, कि लाइक यू आर स्क्रूटिनी के लिए ओपन है हमेशा, ठीक है। और वो कब होगा, जब आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, और वो कब हो पा रहा होगा, जब आपका जो पॉलिसी है वो जस्ट है, कोई दाल में काला नहीं है बेसिकली, ठीक है। चलो सी, एक्सपेंडिंग द कंसेप्ट फर्दर, ट्रांसपेरेंसी इज अ बिहेवियरल वर्च्यू of government or politicians, right? A style of relationship between a political actor and public forum, and a system of formal and informal rules. Lack of transparency may lead to deliberate concealment of information from the public, right? See, क्या बोला हुआ पहले, बोल बच्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इज अ बिहेवियरल वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस, ठीक है, कि उनका बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है, कि किस टाइप का बिहेवियर है उनका, लाइक वो कुछ छुपा तो नहीं रहे चीज़ों को, ठीक है, उस वर्च्यू को दिखाएगा वो। अ स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ पॉलिटिकल एक्टर एंड अ पब्लिक फोरम, एंड अ सिस्टम ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स, ठीक है। देखो, इनफॉर्मल नहीं है, अगर आप लॉ इस हिसाब से हैं, उसके अंडर जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो कर दें, ठीक है, वो बस ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उठ के भी अगर वो कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं इंफॉर्मेशन शेयर, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां पर, राइट। एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में लीड टू डेलिबरेट कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, यस और नो, आई होप समझ आ रहा होगा। ट्रांसपेरेंसी एंश्योर्स constant public scrutiny and makes government more responsible, citizen centric and accountable, yes or no, ठीक है, yes। तो ये इम्पैक्ट्स हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, अभी और भी देखने वाले हैं, बट एक आपको स्टार्टिंग में एक बेस सा बनाया बता रहे हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी की, कि इट विल मेक द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल, यस, सिटीजन सेंट्रिक, यस, अकाउंटेबल, यस। पढ़ते हैं ना तीन वर्ड, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें आपस में लिंक होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो, नहीं, देयर नीड टू बी ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, ओनली देन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन हैपन। देयर नीड टू बी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, उसके लिए क्या वो कब होगा, जब ट्रांसपेरेंसी होगी या रिस्पॉन्सिबल होगी गवर्नमेंट, राइट। सो इन दैट सेंस there can be different mechanism through which transparency in government systems can be assured, right? There can be different mechanism जिसके थ्रू कर सकते हैं। within a government system transparency can be passive, proactive or forced. It can be brought through mechanism like right to information, which is passive, provided through public website and open data, which is proactive, or initiated anonymously through the system in whistleblowing or leaking, which is forced. See, ट्रांसपेरेंसी मतलब, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के तीन मेथड्स हो सकते हैं, ठीक। ट्रांसपेरेंसी कैन बी इन थ्री वेज, कौन कौन से, एक है आपका पैसिव, ठीक है, एक है आपका प्रोएक्टिव, और एक होगा फोर्स्ड, ठीक है। पैसिव मतलब कि जो लॉ बना रखा है, मांगा और आपको मिल गया, एज सिंपल एज दैट, ऑन डिमांड, लाइक जो आरटीआई के थ्रू आप कर रहे होते हो, ये सर नो, आरटीआई फाइल करके आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, वो क्या आपकी पैसिव होगी, यस। देन प्रोएक्टिव की बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट अपने आप को इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही है एक्टिवली, बिना मांगे ही, ठीक है, आगे उठ के अपने तरफ से, ठीक है, लाइक किसी पब्लिक वेबसाइट के ऊपर ओपनली, तो वो क्या है आपका प्रोएक्टिव। देन फोर्स्ड, जब कोई जबरदस्त कोई लीक करी जा रही है कोई डाटा, ठीक है, किसी वेबसाइट के थ्रू कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन किसी ने अगर लीक कर दी, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, कोई विसल ब्लोअर एक्ट है, ठीक है, विसल ब्लोइंग के थ्रू, आई होप विसल ब्लोइंग जरूर समझ आता होगा आपको, तो वो क्या होगा आपका फोर्स्ड। ये तीन वे में क्या हो सकती है, इन ट्रांसपेरेंसी अचीव करी जा सकती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अचीव करी जा सकती है मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू,
Yes or no? Okay, so now let's come on to the next topic. Okay, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की. ठीक है, so now we will be talking about the importance of information sharing. Importance of information sharing. Okay, so the first thing is it helps to make the public officials accountable. It helps to make the public officials accountable for their actions, right? For their actions. Yes or no? Transparency will help you achieve that. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से आप क्या करोगे, स्क्रूटिनाइज करोगे, आप पूछ सकते हो कि भैया ये एक्शन क्यों लिया आपने, इसका क्या रिजल्ट निकला आपका. Yes, so it will help in the accountability definitely. Yes, and then it will help in to fight corruption. It will help to fight corruption. Yes or no? Definitely, right? Corruption fight से fight करने में help करेगा आपकी. Then to claim your rights, to claim rights, to claim the rights. ठीक है, आपका जो हक बनता है उस पर क्लेम करने के लिए भी, राइट? बिकॉज एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी क्या है, बिकॉज पब्लिक हैव द राइट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. पब्लिक ने तो गवर्नमेंट बनाई है. हमने अपनी विल इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हमने खुद अपनी गवर्नमेंट बनाई है, अपने आप को गवर्न करने के लिए बनाई है. तो वी आर द सोर्स ऑफ पावर. तो नथिंग शुड बी हिडन फ्रॉम अस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिडन वाला तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, राइट? तो वी हैव द राइट, पहली चीज, टू नो एवरीथिंग. यस, तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को अगर आप एनेबल कर रहे हो तो यू आर क्लेमिंग योर राइट्स ओनली. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टू बिल्ड, ठीक है, टू बिल्ड ट्रस्ट, टू बिल्ड ट्रस्ट एंड फेथ इन द गवर्नमेंट, टू बिल्ड ट्रस्ट एंड फेथ, ठीक है, अमंग पब्लिक ऑन पब्लिक ऑफिसेज. बेसिकली ट्रस्ट और फेथ को बिल्ड करने में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, कॉमन पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, क्या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट और फेथ को बिल्ड करने के लिए, गवर्नमेंट एंड कॉमन पब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, ट्रस्ट और फेथ होना बहुत ज़रूरी चीज़ है गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, अगर लोगों का ट्रस्ट रहेगा, फेथ रहेगा, ठीक है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी रहता है, राइट? हमने पहले भी देखी है ये चीज़ कि इंपॉर्टेंस क्या है इस ट्रस्ट और फेथ की. ठीक है, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दैट. होगा क्या, बेसिकली इससे इतना बता देता हूँ कि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट गवर्नेंस को अचीव करने में ये हेल्प करेगा, राइट? विच इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी हेल्प करते हैं, इट विल हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एंड फेथ, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू बिल्ड व्हाट, effective and efficient governance, effective and efficient governance. yes, तो उसमें बिल हेल्प करेगा आपकी. yes, then it will help investments also. अगर ट्रांसपेरेंसी होएगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी. it will help या फिर it will encourage public and private investments, public and private investments in government projects. ठीक है, investments which will ultimately what, it will boost the economy, it will boost the economy. yes or no? ठीक है, I hope clear है यहाँ तक. yes, then right, it will help to create a it will help to create a level playing field, create a level playing field between various sections of society, level playing field between various sections of society, between various sections of society. yes,
तो ये भी अचीव करोगे आप। कैसे अचीव करोगे? कि जब इंफॉर्मेशन ओपन है, ठीक है, किसी से किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा जा रहा, सबको बराबरी ट्रीट करा जा रहा है, ठीक है, होगा क्या बेसिकली? इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी आएगी, उससे जस्ट फेथ आएगा, फेथ से ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक जस्ट सोसाइटी बनेगी। जस्ट सोसाइटी बनेगी तो सारे बराबरी पे रहेंगे, इक्वालिटी आएगी सोसाइटी के अंदर। इन दैट सेंस इट विल हेल्प टू अचीव लाइक लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यस, ठीक है। सो आई होप इतना जरूर समझ आया होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द स्लाइड्स, देखते हैं वहां पे क्या है। यस, सी importance of transparency and information sharing in government. So it is the building block of conscious goal setting by actors in the government, right? Information की बात हो रही है यहाँ पर। Then when public policy makes seeks to shape information for better decision machining and coordination, transparency becomes practically relevant for efficiency, ठीक है। ओके, होल बचन है, यू कैन इग्नोर दिस ऑल्सो, हमने काफी बारी चीज देख ली है, जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ व्हाट ऑलरेडी वी हैव स्पोकन। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी में बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स, ठीक है। 3 जो तरीके देखे हैं, कौन कौन से? इंफॉर्मेशनल ट्रांसपेरेंसी वेयर द न्यू डाटा यूज्ड टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी, सी पहली क्या है आपकी? इंफॉर्मेशनल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सेकंड आपकी डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तीसरी आपकी पॉलिसी आउटकम ट्रांसपेरेंसी। इस तरीके से भी आप ट्रांसपेरेंसी के को बाइफरकेट्स कर सकते हो, आप बांट सकते हो। लाइक इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इट विल से वेयर द न्यू डाटा यूज्ड टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहां पर आप सीधा सीधा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, नया कोई डाटा आया उसको साथ साथ शेयर करे जा रहे हो, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी वेयर द कंटेंट एंड द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस आर नोन एंड आइडेंटिफाइड, ठीक है। देन पॉलिसी आउटकम ट्रांसपेरेंसी वेयर द एक्चुअल पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेज एंड देयर कॉजल डिपेंडेंसी इज ट्रांसपेरेंट टू पब्लिक एंड अदर डिसीजन मेकर्स। सी यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है, डोंट गो इनटू सो कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप इसको इग्नोर करिए। सिंपली वो 3 जो वेज आपको मैंने बताए हैं, कौन कौन से, ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सिंपली इग्नोर दिस। Just a second, right? एक second, wait a minute, I'll do it. Okay, yes, so we shall now continue. Okay, so what I was telling you, see you can ignore this aspect also, ठीक है, but just for your information मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, right? Let me explain it to you. Yes. See, transparency can be divided into 3 types. First is informational transparency, then decision making transparency, and then is policy outcome transparency. See, इनका मीनिंग क्या है कि ट्रांसपेरेंसी के 3 टाइप जो है, पहली इंफॉर्मेशन कि भाई सारी जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सब शेयर करी जाए, इन्फॉर्मेशन कोई ना छुपाई जाए। एनी इन्फॉर्मेशन लेट्स से कोई पब्लिक पॉलिसी है, कोई पॉलिसी है, उससे रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन रखी जाए। सी वेयर द न्यू डाटा यूज टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग इज ट्रांसपेरेंट। सारा का सारा डाटा, न्यू डाटा, इन्फॉर्मेशन, सब जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा की बात हो रही है यहाँ पर, वो सब ट्रांसपेरेंट है। देन डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर क्या है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, बेसिकली डिसीजन मेकर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको हिडन नहीं रखा हुआ, उनके सारे के सारे नाम क्या है, ओपन है, सबके सामने पब्लिक स्क्रूटिनी के अंदर वो अपीयर कर रहे हैं, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, राइट? उसको क्या बोलोगे आप? डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी। सी व्हेन द कंटेंट एंड द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस आर नोन एंड आइडेंटिफाइड, राइट? कंटेंट तो चलो है ही ऑब्वियसली, और एक्टर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी, और जिन्होंने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी में बनाई है बेसिकली, ठीक है, प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, उन सबको आप पब्लिक स्क्रूटिनी में ओपन रखें, हिडन ना रखें कुछ। देन पॉलिसी आउटकम ट्रांसपेरेंसी, तो उस पॉलिसी का आउटकम क्या रहा, ठीक है, उसको आपने पब्लिक में रिवील कर रखा है। वेयर द एक्चुअल पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेज एंड देयर कॉजल डिपेंडेंसी इज ट्रांसपेरेंट टू पब्लिक एंड अदर डिसीजन मेकर्स, राइट? तो उसको क्या बोलोगे आप? पॉलिसी आउटकम ट्रांसपेरेंसी,
ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप अब जरूर समझ आ गया होगा। ठीक है, देन ओके, सी ट्रांसपेरेंसी कट्स डाउन द डिस्क्रेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस। यस और नो? ऑब्जेक्टिविटी लेके आएगा वो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे होंगे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट। जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सबकी जनरल पब्लिक के डोमेन के अंदर है अवेलेबल, तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते ना, बिकॉज उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता होगा उस केस में, अकाउंटेबल है अच्छे से वो। तो ये इंपॉर्टेंस होती है बेसिकली, डिस्क्रेशन को हटाता है, डिस्क्रेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। दिस रेजेस अ क्वेश्चन एज टू व्हाई अ ग्लोबल मूवमेंट टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी हैज फाउंड एक्सेप्टेंस अक्रॉस कंट्रीज एंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट which reduces their autonomy. Yes, तभी एक ग्लोबल मूवमेंट चलाई गई थी इसी के लिए कि भाई ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करो। दिस causal explanation of the transparency movement can be explained on the basis of external pressure that acts on the government. ठीक है, क्या है अभी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद द एजिटेशन ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन। Given the right incentives, politicians are likely to comply with the popular just demands, right? तो बेसिकली इसके लिए मूवमेंट चलाई गई हैं, तब जाके पॉसिबल हुआ। उसी का एग्जांपल दिया है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसकी वजह से ही, ठीक है, इंडिया के अंदर भी आरटीआई की बात हो पाई थी, आरटीआई हम लेके आ पाए थे, राइट? ओके, सो यस, see, transparency is coextensive with the rise of civil society and the growth of democracies, right? जैसे जैसे डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती चली जाती है गवर्नेंस के अंदर। यस, सिविल सोसाइटी के राइज के साथ सिविल सोसाइटी का ट्रांसपेरेंसी से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। सिविल सोसाइटी ही ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, यस और नो, दे विल फाइट फॉर योर राइट्स, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है, यस और नो, ठीक है। अगर एक ही पार्टी रूल करती रहेगी, उन्हीं का रूल चलेगा, तो काहे की ट्रांसपेरेंसी? पॉलिटिकल कंपटीशन ही तो है जो लेके आएगा क्या? ट्रांसपेरेंसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस चूज टू अडॉप्ट ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू कैपिटलाइज ऑन पॉलिटिकल सुपरायोरिटी प्रोवाइडेड दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स आर सब्जेक्टेड टू द सेम लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सी, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, ओके, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस चूज टू अडॉप्ट ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू कैपिटलाइज ऑन पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी प्रोवाइडेड दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स आर सब्जेक्टेड टू द सेम लेवल ऑफ सुप्रीमेसी। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपकी कंपटीशन बढ़े, मान लो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वहीं पर पॉलिटिशियंस की बात होगी, वहीं पर पार्टीज की बात होगी, तो जब जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएगा वो पॉपुलर वोट भी गेन करेगा बेसिकली। तो कुल मिला के बात है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे जैसे एडवांस करेगी डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज पीपल विल ओप्ट फॉर दैट, गो फॉर दैट, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑल्सो गो फॉर दैट टू गेन वोट, टू गेन पॉपुलर वोट। रेसिस्टेंस टू ट्रांसपेरेंसी में रिजल्ट इन नेगेटिव पब्लिसिटी। सी, दिस इज द रीजन, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी रेसिस्टेंस, इट विल लीड टू नेगेटिव पब्लिसिटी। ऐसा नहीं चाहेगी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो तभी ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो खोल के देखना, वहां पर आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंसी को कितना फेवर कर रहे थे वो, करा के नहीं, वो अलग बात है। द रिस्क ऑफ बीइंग लुक्ड एट एज एन एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ ग्रेटर brings a greater cost of brings then accepting transparency, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ना शो करना बेसिकली एंटी डेमोक्रेटिक लगता है, ठीक है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हेंस दे विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। यस, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर, ठीक है। ओके, देन इंटरनल रिसोर्सेज एंड डिसीजंस मस्ट आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। Okay, maintaining transparency requires adequate resources and strong internal organizational capacity. ये बता रखे क्या ज़रूरत है, what is the requirement, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? There are a lot of internal resources and decisions must be taken into account, ठीक है। Maintaining transparency requires adequate resources and strong internal organizational capacity. कुछ रिसोर्सेज आपको डेफिनेटली डेडिकेट करने पड़ते हैं टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ऐसे तो आएगी नहीं,
हमारे यहाँ भी प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसके लिए। यस और नो? ट्रांसपेरेंसी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी of the organization as transparency is increasingly reliant on digital forms of informational disclosure। यहाँ पर डिजिटाइजेशन की बात रखी है कि डिजिटल, तो उसके लिए क्या लगेंगे? रिसोर्सेज लगेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आज की डेट में डिजिटल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए रिसोर्सेज लगते हैं। यस, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए भी डेफिनेटली वो रिक्वायरमेंट है विद टाइम। ठीक है, टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉपुलर प्रेशर एंड पॉलिटिकल विल, ट्रांसपेरेंसी पॉलिसीज आर प्रोलिफरेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, बहुत डिजिटाइजेशन विल लीड टू व्हाट? ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करेंगे वो। यस और नो? डिजिटाइजेशन विल हेल्प टू अचीव ट्रांसपेरेंसी। वहीं बता रहे हैं कि आजकल हम अचीव भी तभी कर पा रहे हैं। यस, ओके, सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग ट्रांसपेरेंसी, सॉरी challenges. Now let's see the challenges. Let us see the challenges in information sharing and transparency. ठीक है, देखते हैं क्या क्या challenges फेस करने पड़ते हैं इसके लिए। फर्स्ट इज structural constraints. First is what? The structural constraints. Yes, क्या structural constraints हैं? सी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। यस और नो? यू नीड मैन पावर। ठीक है, मैन पावर भी चाहिए आपको। अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो डिजिटल रिसोर्सेज चाहिए आपको काफ़ी सारे। यस, सो द लैक ऑफ, ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ व्हाट? लैक ऑफ रिसोर्सेज, लाइक लैक ऑफ स्टाफ। ठीक है, ऑफलाइन रिकॉर्ड्स, राइट, ये स्ट्रक्चरल कांस्टेंट है सबसे पहले तो, राइट। कहीं अगर मान लो डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं, बट स्टिल यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ लैक इन द डिजिटाइजेशन ऑफ फाइल्स। डिजिटल हो जाना चाहिए चीज़ों को, तो उससे क्या रेड टेपिज्म आता है? लैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ फाइल्स, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। हार्ड कॉपीज उनको डिस्ट्रॉय करना ईजी होता है। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है? ह्यूज फाइल्स बन जाती हैं, सो कंपाइल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ह्यूज फाइल्स to compile is becomes very difficult. Yes or no? ठीक है, then second, privacy and security. Privacy and security, right? अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी एक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी प्रोवाइड करी गई हैं। ठीक है, कुछ एक्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी गवर्नमेंट के पास कुछ राइट्स हैं जिसके अंदर सीक्रेट्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी करा जा रहा होता है, तो ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये जो कि प्राइवेसी और सीक्रेसी के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के प्राइवेसी और सीक्रेसी के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें सीक्रेट रख दी जाती हैं जो कि पब्लिकली रिवील नहीं करी जा रही होती। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी के डेफिनेटली अगेंस्ट है, राइट। देन सो ये बेसिकली क्या है? ये रोड ब्लॉक है। दीज आर व्हाट? रोड ब्लॉक्स। ठीक है, इन द पाथ टू विच लीड टू ट्रांसपेरेंटी, उसके आगे क्या है? ये एक रोड ब्लॉक्स है। ठीक है, देन ग्रीवेंसेस। grievances, there is a lack of what? Grievances mechanism, there is a lack of grievances mechanism. Yes, इसका बहुत बड़ा लैक है। Then immunities, ठीक है, immunities। अब सिविल सर्वेंट्स एंजॉय अ लॉट ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, द इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय सिविल सर्वेंट्स, इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है बेसिकली। यस, तो वो ट्रांसपेरेंसी के आड़े आ जाता है। यस, तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं वो सामने पब्लिक के सामने रिवील करते। ठीक, देन थ्रेट टू द एक्टिविटीज, थ्रेट टू एक्टिविस्ट, थ्रेट टू एक्टिविटिस्ट, कि जो ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहता, जो आपकी सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, राइट,
वो लेके आना चाहते होते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो उनको थ्रेट मिलते हैं। हमने बहुत सारे केसेस भी सुने हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे जर्नलिस्ट की डेथ भी हो चुकी है इस चक्कर में, ठीक है, दे हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। तो दोज हु आर फाइटिंग, दोज हु फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, those who fight against the government for corruption tend to receive these kind of threats, ठीक है, लाइव थ्रेट्स मिलते हैं उनको, यस और नो, तो फिर वो एक ट्रांसपेरेंसी के आड़े जाता है, यस। देन लास्ट इज डिले, देन देयर आर डिलेज, बहुत डिले हो जाता है रिपोर्ट इंफॉर्मेशन रिवील करने में, ठीक है। देयर आर डिलेज इन डिस्पोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिले, यस और नो, ठीक है। देन डिजिटल आउटरीच, हमने बोल वही अगेन घूम फिर के क्या, देयर इज अ नीड फॉर व्हाट, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, नो डिजिटाइज वेरी लेस डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी पुराने जमाने के एक तरीके से काम कर रहे हैं, यस। देन देयर इज नो कल्चर ही नहीं है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, चाहिए ही नहीं लोगों को, लैक ऑफ कल्चर फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लैक ऑफ कल्चर फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। देन करप्शन, माल प्रैक्टिसेस, yes or no, these will lead to what, these are against आपकी ट्रांसपेरेंसी। देन देयर इज अ लैक ऑफ इफेक्टिव, और क्या हो सकता है, लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, अगर लीडरशिप ही वीक हो तो कहां से लाओगे आप, सिस्टम ही नहीं सही चलेगा, yes or no। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एब्सेंस ऑफ क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, एब्सेंस ऑफ क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती, ठीक है, वैल्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, जबकि बहुत जरूरी होती है, यस। ओके, सो दीज आर द हिंड्रेंसेस इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट। सो ये आप अपने आंसर्स में डेफिनेटली कोट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म टू इंश्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक पॉलिसी। सो मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं, नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म्स, ठीक है, वी विल सी द मैकेनिज्म्स। सो व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, फर्स्ट इज द आरटीआई, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा इसके बाद, ठीक है। द फर्स्ट इज द आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट वाज इनेक्टेड एंड इट हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, में फॉलो करना है इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, आरटीआई। देन इज ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जब भी कोई पब्लिक ऑफिशियल इनेक्ट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का पार्ट बनता है, तो दैट पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड विद एन ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेट हो जाए, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, ठीक है, एनीवन, सबको क्या दिलाई जाती है, ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, टू अचीव, क्या अचीव करना चाह रहे होते हैं, यही। देन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली ये क्यों लिखा, बट आई एम सेइंग इट शुड बी रिपील्ड, दिस शुड बी रिपील्ड, अगर ये रिपील हो जाएगी तो इट विल हेल्प इन अचीविंग द ट्रांसपेरेंसी, इट शुड बी रिपील्ड, इट गोज अगेंस्ट, ठीक है, इसको इट शुड बी गो अवे, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है बाय द वे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का। तो देन इज ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन, बेसिकली ई गवर्नेंस, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना है, इसके न्यूमरस एग्जाम्पल हैं, राइट। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वी नीड टू डेवलप, ठीक है, वी नीड टू डेवलप टूल्स टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस, yes or no, right। then
डिजिटल डिवाइड, देयर इज व्हाट, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अब डिजिटल डिवाइड क्या होता है? रूरल एरिया में जाओ आपकी आज की डेट में, अर्बन हर किसी को बराबरी, आज की डेट में डिजिटाइजेशन तो हो रही है, बट क्या ये हर जगह पे बराबरी से जा रही है? नो। अगर आप रूरल एरिया और डिजिटल, आप अर्बन एरिया का कंपेयर करेंगे, इफ यू कंपेयर द रूरल एंड द अर्बन एरिया, यू विल सी अ ह्यूज डिवाइड। अर्बन एरिया के अंदर डिजिटली ज़्यादा एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट, वहाँ पर डिजिटाइजेशन ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, बट रूरल एरियाज के अंदर आप जाओगे तो काफ़ी बुरा हाल है अभी भी। ठीक है, सो वी नीड टू कवर दैट। देन इज सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोशल ऑडिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम रूरल की बात करते हैं तो वहां पर आपके सोशल ऑडिट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। ठीक है, वो इंप्लीमेंट होने चाहिए। ठीक, देन मीडिया। ठीक है, मीडिया शुड बी व्हाट, अनबायस्ड। ठीक है, मीडिया शुड बी अनबायस्ड, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो और मीडिया को हमेशा सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, फेयर होनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। यस, देन इज सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, डोंट वरी, क्या होता क्या नहीं होता तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेज टू विच वी कैन अचीव दिस। नाउ लेट अस गो बैक टू द स्लाइड्स। ओके, यस, सो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर भी क्या लिखा है। द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्या फायदे होते हैं, इंपॉर्टेंस बेसिकली। सो द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी आर वाइड रेंजिंग एंड इट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन शोज दैट कंट्रीज विद ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट टेंड्स टू हैव हायर जीडीपी एंड लोअर लेवल्स ऑफ करप्शन। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। जीडीपी बढ़ता है, करप्शन कम होगी तो ऑब्वियसली आपका जीडीपी भी बढ़ता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, अगेन पी प्रोग्रेस होएगी। यस, डेफिनेटली आएगी। These are all the things are linked together, right? आपको लिंक बिठाना आना चाहिए। See, transparency elevate information asymmetry. This is the important aspect that exists between government and the rest of the public. Yes, information asymmetry कीवर्ड है आपके लिए, कीवर्ड ध्यान रखने हैं आपको। ट्रांसपेरेंसी विल रिड्यूस व्हाट, information asymmetry। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास ज्यादा रखी हुई है, पब्लिक के पास बहुत कम इंफॉर्मेशन रिवील कर रखी है, तो ये क्या एसिमेट्री है। सिमेट्री कब आएगी, तो बराबर इंफॉर्मेशन होगी, जितनी गवर्नमेंट के पास है उतनी पब्लिक के पास भी ओपन है। ठीक है, व्हेन पब्लिक इज एम्पावर्ड विद नॉलेज दे आर बेटर एबल टू होल्ड दोज इन पोजीशन ऑफ पावर अकाउंटेबल। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करेगा। यस, बिल्कुल करेगा। जब नॉलेज आएगी, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, देन द पब्लिक कैन हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन अकाउंटेबल। ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी। Yes or no? How? Transparency will lead to what? Evidence based policy making. ठीक है, राइट, ट्रांसपेरेंसी अचीव कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो कर रही है कोई गवर्नमेंट, तो वो खुले में एविडेंस भी दे सकती है, देखो भैया हमने ये किया था, उसका ये आउटकम आया था, तो अकॉर्डिंगली हम ये पॉलिसी कर रहे हैं। उससे क्या ऑब्जेक्टिविटी आएगी, फेयरनेस आएगी। ठीक है, गवर्नेंस के अंदर, आपकी नेशन के अंदर। यस और नो? इन पॉलिसीज, पॉलिसी मेकिंग में रादर ऑब्जेक्टिविटी आएगी आपकी, बिल्कुल आएगी। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स एंड स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। सी, आई होप अब तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिविटी कैसे आ रही है ट्रांसपेरेंसी से, फेथ बिल्ड हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी से इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, क्या रिलेशंस हैं इसके। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। जब भी आप आंसर लिखें, जितना हमने पढ़ा है अभी वो बेस बना है, उसी वजह से ये सारे वर्ड दोबारा दोबारा आ रहे हैं। आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ओनली। ठीक है, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी हमने सीखा है वो आपको दिखेगा इन सब चीज़ों के अंदर, कि फेथ और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, फेथ और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और वो कब आता है, सो पब्लिक के अंदर आएगा अगर वो आपको अकाउंटेबल हेल्ड कर सके। गवर्नमेंट को अगर अकाउंटेबल हेल्ड कर सकती है किसी भी टाइम, और उस ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली उसमें हेल्प करती है अकाउंटेबिलिटी में। ठीक है, यस और नो? ठीक, यस, देन ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स है, यस, पब्लिक ट्रस्ट हो गया। ओके, देन बट स्कॉलर्स अराउंड एक्सेप्ट दैट ट्रांसपेरेंसी कैन बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर चैलेंजेस की बात भी हो रही है कि एक चीज यहाँ पर क्या है कि क्या चीज आपको लोगों के आगे रखनी है और क्या नहीं। हर चीज क्या कैन
गवर्नमेंट शेयर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें छुपानी भी पड़ती हैं, ज़रूरी भी होती हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग कैन बी रिवील्ड इन द पब्लिक, शुड बी रिवील्ड, ठीक है, उसका कुछ लोग मिसयूज कर सकते हैं। सो ट्रांसपेरेंसी में लीड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू मेनी पार्टीज इन पॉलिसी मेकिंग। जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो टाइम भी लग जाता है। पॉलिसी मेकिंग में एक लिमिटेड पर्सन होने चाहिए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी आ जाए तो पॉलिसी भी अपने आप में बहुत लेंदी, बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है। एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिसी मेकिंग में स्लो डाउन सब्सटेंशियली, यस वहीं यहाँ लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी में इवन एंक्रोच अपॉन प्राइवेसी ऑफ दोज हु होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, उनकी प्राइवेसी पे भी तो एंटर कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकती हैं। पब्लिक ऑफिशियल्स की प्राइवेसी की बात कर रही है। देन स्मॉल मैटर्स कैन ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड अट्रैक्ट कोर्ट केसेस विच में लीड टू कॉस्टली लीगल डिलेस, कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, अननेसेसरीली हिंड्रेंसेस क्रिएट हो सकती हैं अगर ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ ओपनली रख दी जाए, कुछ भी सीक्रेट ना रखा जाए, तो उस केस में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इवन व्हेन इंफॉर्मेशन इज सप्रेस्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, it is termed as hypocrisy of the government affecting the citizens trust in the government, right? कि अगर कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को भी क्या करा जाए, सप्रेस कर दिया जाए, तब लोग क्या बोलने, हाइपोक्राइट बोलना शुरू कर देते हैं कि भी ये तो गलत कर रहे हो, जबकि एक्चुअली वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कुछ चीज़, इसलिए सारा कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं करना, ठीक है। 100% ट्रांसपेरेंसी की शुड इज ऑल्सो नॉट गुड, वो भी यहाँ बताई हुई है। तो इसको भी आप डेफिनेटली कहीं पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। जब अगर आप मान लो से क्वेश्चन आ जाए कि क्या हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हर चीज़ रिवील कर देनी चाहिए पब्लिक के लिए, तो वहाँ पर आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हो कि नहीं, सारा कुछ भी रिवील नहीं करना होता, कुछ चीज़ें लाइक उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स बता सकते हो यहाँ पर। दिस इज व्हाट द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, विच इज व्हाट फर्स्ट, पॉलिसी मेकिंग बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी, ठीक है, इट मे स्लो डाउन द पॉलिसी मेकिंग। देन प्राइवेसी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स को हिंडर करता है, राइट। देन इट हिंडर्स व्हाट, हाइपोक्रेसी को बढ़ावा देता है ये, ठीक है, हाइपोक्रेसी को भी बढ़ावा देता है अगर हिडन रखा जाए चीज़ों को तो, राइट। इन दिस सेंस यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स, राइट। देन on one hand, transparency can lead to a healthy habit of politicians to act properly in order to avoid blame. But if the spirit of transparency is not followed, transparency may be turned into a game of tinkering and spinning of information in order to generate favorable public opinion. Again, अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना शेयर करी जा रही हो ना, मोल्ड करके चीज़ों को शेयर करा जा रहा हो, ठीक है, तो अपने फेवर में भी जो है पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड किया जा सकता है, जो कि गलत चीज़ है, ठीक है, जो कि गलत डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से मिसयूज किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर मिसयूज किया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर। तो ये भी जरूरी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सिमिलरली पॉलिटिशियंस मे नॉट बी विलिंग टू टेक टफ डिसीजंस एंड फोकस मोर ऑन मैनेजिंग परसेप्शन ऑफ द पब्लिक बाय स्पेंडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज कन्विंसिंग देम ऑफ हिज ओन क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अगर कोई टफ डिसीजन जो है पॉलिटिशियंस खुद नहीं लेना चाहते, वो पब्लिक के पास सामने रख दें और उसके बेस पे साइड कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ प्रिकॉशंस बताए हुए हैं, ठीक है। Accordingly you can use them in your answers, right? Okay, see another unintended consequence of transparency, basically हम consequences देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, harmful consequences भी पॉजिटिव भी दोनों देख रहे हैं, अभी नेगेटिव साइड ज्यादा है। is that perception of political ineptitude or corruption is magnified to the collective level of the organization। ये क्या कह रहे हैं कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लेट से एक बंदा करप्ट है, हाईएस्ट ऑफिशियल है, लाइक ऊपर बैठा है वो करप्ट है, लेकिन बाकी क्या है नीचे नॉट करप्ट है। बट होगा क्या कि अगर वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से इंफॉर्मेशन रिवील हो जाए कि ऊपर जो पॉलिटिशियन साहब है, जो आपके चेयरमैन साहब है, उन्होंने कुछ करप्शन करी, तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही बदनाम हो जाएगा आपका कि यहाँ पर सारे ही करप्शन कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इफेक्ट करता है वो। तो ये भी एक क्या है, साइड इफेक्ट है इसका। This may generate negative public opinion not only for the officer or politician, but negative person is generalized for the entire organization. Yes, false opinions may be formed on this basis and may even become ingrained in the social consciousness. बहुत ज़्यादा impact पड़ सकता है उसका। Further, if this is repeated frequently, citizens or civil society actors may decide to withdraw and disengage from politics as a response to political dysfunction rather than seeking remedial actions and holding government accountable, which is the core of transparency। ये क्या कह रहे हैं बेसिकली कि भैया अगर फ्रीक्वेंटली चलता रहे कि लाइक ऐसे करप्शन चलती रहे ऑफिशियल्स की वजह से, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली बिल्कुल ही ट्रस्ट लूज हो जाएगा, सिविल सोसाइटी का भी ट्रस्ट लूज हो जाएगा, वो एक्शंस लेना भी छोड़ देगी। तो उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी एंड इट में लीड टू द फॉल डाउन, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही गिर सकती है उससे। यस,
राइट, ओके, ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, so now last topic, last thing, the most contentious topic of transparency, cost and benefit is the impact of transparency on citizen trust and attitude towards the legitimacy of the government action. बेसिकली ट्रांसपेरेंसी से गवर्नमेंट क्या सबसे इंपॉर्टेंट वही एस्पेक्ट है, वही ट्रस्ट. ठीक है, और ट्रस्ट अगर बिल्ड होता है लेजिटिमेसी बिल्ड होती है. व्हाट दे आर सेइंग कि ट्रांसपेरेंसी विल हेल्प इन अचीविंग व्हाट, लेजिटिमेसी. इट विल हेल्प इन अचीव द लेजिटिमेसी. वही ट्रस्ट, फेथ की बात हो रही है. और अल्टीमेटली ये क्या लेके आएगा, प्रोग्रेस, एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस लेके आएगा. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस लेके आएगा, जिससे क्या होगा, प्रोग्रेस आएगी सोसाइटी में, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ठीक है, पीस, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग विल गो गुड, सब कुछ सही होता चला जाएगा. द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी बिकम्स ever more complex with the challenge of balancing good kinds of transparency such as political accountability and public participation with dangerous kind of transparency such as surveillance and invasion of personal privacy. बेसिकली एक बैलेंस जरूर बना के रखना है कि ट्रांसपेरेंसी जितनी जरूरत है उतनी जरूर अवेलेबल करा देनी चाहिए, उतनी जरूर इफेक्टिव होनी चाहिए, सो दैट जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमने देखे हैं वो ना हो. वो भी अच्छी बात नहीं है, वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट डालेगा गवर्नेंस के एस्पेक्ट के ऊपर. 100% ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो नॉट गुड. वो यहाँ पर यही कहा जा रहा है. इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है. राइट, इट इज अ वेरी गुड कंक्लूजन फॉर यू. राइट, सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था. ठीक है, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना नेक्स्ट रहेगा, वो है आरटीआई, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो और उसको ज़रूर देखना है आपने. कल लेके आऊँगा सेम टाइम. ठीक है, सो विद दिस आई वॉन्ट टू विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड वी विल मीट इन टुमारो in the next lecture. Till then, take care and bye bye. Thank you.